अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार शून्य से भी नीचे पहुंच गई हैं, यानी कि नेगेटिव हो गई हैं। ये गिरावट का सबसे निचला रिकॉर्ड स्तर है। कच्चे तेल की मांग घटने और स्टोरेज की कमी की वजह से तेल कीमतों में ये गिरावट आई है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोग घरों में हैं। तेल की मांग में कमी की ये भी एक बड़ी वजह है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI, जिसे अमेरिकी तेल का बेंचमार्क माना जाता है, वहां कीमतें गिरकर $-37.63 प्रति बैरल हो गई हैं। सोमवार को आई गिरावट का असर दुनिया भर के तेल बाजारों में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट ने भी कच्चे तेल के दाम में 8.9% की गिरावट दर्ज की है। यहां तेल की कीमत गिरकर $26 प्रति बैरल हो गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस नाम की इस वैश्विक समस्या के सामने हम सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रियस ने चेतावनी देते हुए कहा कि बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश गलत फैसले ले रहे हैं। कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 करार देते हुए गेब्रियस ने कहा कि इस संकट को लेकर पूरी जानकारी न होने की वजह से कई देशों में स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में कल से लॉकडाउन से छूट शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में स्थिति को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कल से कार्गो सर्विस शुरू हो गई है और उनसे टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कुछ जरूरी क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन से छूट शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में स्थिति को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों की सीमित अनुमति दी है। हालांकि इन गतिविधियों के दौरान कोविड-19 सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा। My own country, Ethiopia. Today is the first day our press conference are being interpreted in all official United Nations languages: Arabic, Chinese, French, Russian, and Spanish. And soon we will start Swahili and Hindi. And we would like to make our UN truly multilateral by including more languages, so communicating with the whole world directly. And I would like to welcome all journalists from around the world. And I invite you to ask questions in any of the 6 UN languages, for the time being, of course. And we will keep opening up more languages. And I would like to start by thanking the many musicians, comedians, and humanitarians who made Saturday's One World Together at Home concert an enormous success. So humbled. And the whole WHO community is very, very grateful for the support that really poured all the 8 hours. WHO is proud to have co-organized this event with Global Citizen, my brother Hugh Evans, and also Lady Gaga. And I also want to thank my colleague Paul Garwood, who came up with the idea and has worked incredibly hard for several weeks to make it happen. Paul Garwood is one of our colleagues in the front line. I asked my colleagues to give me crazy ideas, and he did. But as a boss, I take all the credit, and we shouldn't, and I shouldn't do that. And all the credit goes to my colleague Paul Garwood from our communications department, who actually told me this idea, suggested this idea based on my request to all staff who I asked to give me crazy ideas. And I hope all my staff will continue to give me crazy ideas, and my respect and appreciation to all my staff. I'm proud to be WHO. Very, very proud. The event raised more than $127 million
to support several organizations responding to COVID-19, including $55 million for WHO Solidarity Response Fund. The fund has now raised more than $194 million from more than 270,000 individuals, corporations, and foundations. Yesterday, I had the honor of addressing health ministers from the G20 countries. I appreciate the expressions of support from many countries for WHO's coordinating role and our technical guidance. I also appreciate the statements of the G77 and the non-aligned movement expressing their strong support for WHO. As you know, G77 in 133 countries and the non-aligned movement 120 countries. This is a big vote of confidence, and we thank NAM and we thank the G77 countries. WHO's commitment is to science, solutions, and solidarity. Our commitment is to supporting all countries to save lives. That's it. That's our intention. That's what we are for. वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्गो सर्विस शुरू हो गई है और उनसे टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। मुंबई, नागपुर, चेन्नई और मुरादाबाद में भी कार्गो सर्विस पर टैक्स वसूली की गई। गोवा में कोरोना के 7 मरीजों का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद राज्य कोरोना मुक्त हो गया है। साथ ही वहां सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया। राज्य परिवहन की बसों से कर्मचारियों को लाया ले जाया जा रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों का आना भी शुरू हो गया है। संसद के सचिवालय में भी कामकाज शुरू हो गया है। कामकाज के दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए संसद के सचिवालय में काम शुरू किया गया है। संसद की विधिवत कार्यालय शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जो भी आवश्यकता है, सतर्कता है, वो बढ़ती गई है और जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारी अभी संसद में आए हैं और हम कोशिश है कि सतर्कता और सावधानी से संसद के इस भवन के अंदर बैठे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दिल्ली और पंजाब में लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी गई है। हालांकि कृषि से जुड़ा कामकाज जारी है। पंजाब के लुधियाना जिले में गेहूं की कटाई जारी है। पंजाब के किसानों ने बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है। वहीं दिल्ली के खेतों में किसान सब्जियां उगाकर उसे बाजारों में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी। इस मौके पर किसान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बैरकपुर इलाके में जूट मिल में श्रमिक काम करते नजर आए। पुदुचेरी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मनरेगा श्रमिक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में थोक व्यापारियों ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलने के बाद कहा कि बाजार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री आ रही है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति है। 2 चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति है। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे तमाम उपायों के जरिए केंद्र की कोशिश न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है, बल्कि लोगों को राहत देना भी है।